Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 1 medical and non-medical stream. Today's topic is circular motion, uniform circular motion and the dynamics about the uniform circular motion. First of all, circular motion. What do you mean by circular motion? Motion of an object along circular path is known as a circular motion. For example, motion of moon around the earth and motion of earth around the sun. Suppose a body is moving in a circular motion having this center O, having the cross section of BD and AC. And here you see that first at point A, it is having a A vector. At point B, it is having B vector, C vector and D vector. That means at each and every point, the object is changing its direction. That means speed is constant but velocity is not constant there when a body is moving in a circular motion due to the change in direction at each and every point. Next is uniform circular motion. An object is said to move with uniform circular motion if it moves with a constant velocity but constant speed but not constant velocity along a circular path. अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट उसकी स्पीड है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है along a circular path, then it is said to be possesses a uniform circular motion and it is also termed as UCM. And if object cover equal distances in equal interval of time along a circular path, then it is also said to possess a uniform circular motion. Uniform motion अगर सर्कुलर पाथ पे होगा देन इट इज सिंपली टर्म्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एंड इस केस में जो वेक्टर्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट वी ए वेक्टर नॉट इक्वल टू वी बी वेक्टर नॉट इक्वल टू वी सी वेक्टर नॉट इक्वल टू वी डी वेक्टर. क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी अब बराबर नहीं है. पर अगर मैं इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूँ, मैग्नीट्यूड इज इक्वल, दैट मीन्स यहीं से ही स्पेसिफाई होता है दैट द स्पीड इज इक्वल बट the velocity is not equal because the direction, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर लिया है, वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आती हैं, वो इक्वल नहीं है. पर अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेती हूँ एज इन केस ऑफ स्पीड, तो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपली इन अ सर्कुलर मोशन. Next, here are some characteristics of circular motion. First is angular displacement. Angle described by object moving from one position to the another. This is termed as along a circular path is termed as a angular displacement. जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट था, वही यहीं पे क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज नाउ इट इज डिस्क्राइबिंग अ एंगल as it is moving along a circular path. A body is moving along a circular path. यहाँ पे t is equals to 0 टाइम पे a पोजीशन पे था, फिर t is equals to t टाइम पे ये b पोजीशन पे चला गया, तो इसने सेंटर में कितना एंगल बनाया? दैट वुड बी टर्म्ड एज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. So that theta would be equal to BOA angle. And the specific particulars about that is its unit is radian or degree and it is a vector quantity because here the direction matters. Okay, whether you are taking A to B or B to A, it matters. Next is angular velocity. Angular velocity is simply like the velocity. It is a rate of change of displacement. No, it is a rate of change of angular displacement because now we are dealing here with the angular velocity. So it is a rate of change of angular displacement of object with respect to time. So angular velocity is equal to angular displacement divided by time and units is obvious radian per second. Next is angular acceleration. It is a rate of change of angular velocity of an object with respect to time. यानी कि अगर हम rate of change of velocity करते हैं तो acceleration आएगी, rate of change of displacement करती हैं तो angular velocity आएगी. And here the units are radian per second square. And time period, time taken to complete one revolution. एक revolution को cover करने के लिए जितना time लगता है, that is the time period. And frequency is the inverse of the time period. Number of revolutions completed in 1 second. और you can also say कि कितने revolution एक सेकेंड में उसने कितने revolution लिए given body या given object ने while traveling along a uniform motion along a circular path.
So that is also termed as a frequency, and frequency here is the inverse of time period, यानी कि 1/t is equals to nu, and frequency को आप nu से, eta से और small f इन तीनों से डिनोट कर सकते हो. अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिनोनेशन है, बस और कुछ नहीं. नेक्स्ट इज this table is important that in this way we are comparing the translatory motion and the circular motion. Translatory motion में displacement s से डिनोट किया था हमने, circular motion में angular displacement थीटा से डिनोट कर रहे हैं, और ट्रांसलेटरी मोशन में वेलोसिटी कैसे डिनोट करें, v इज इक्वल टू ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिटरमिन कर रहे हैं, d of dt of theta, rate of change of angular displacement. Next is the acceleration. Acceleration is rate of change of velocity in case of translatory motion, and in case of circular motion, angular acceleration is the rate of change of angular velocity. Okay, so this one is the angular acceleration. S, V, A, यहाँ पे theta, omega and alpha in case of the circular motion, because here angular term is joining in case of the circular motion. Next is the relation between angular velocity and time period. Actually angular velocity is equals to the rate of change of displacement, or you can say simply displacement cover divided by time taken, and the displacement cover maximum is 2 pi. यानी कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो वो मैक्सिमम एंगल कितना बनाएगा, 2 पाई. सो लेट इट बी 2 पाई डिवाइड बाय थीटा. हियर इज अ ओमेगा, एंड यू कैन आल्सो से 1/t इज इक्वल्स टू न्यू, जो कि क्या है, फ्रीक्वेंसी. तो हम ओमेगा को 2 पाई डिवाइड बाय t भी लिख सकते हैं और 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं. Next is we have to find the angular velocity of hour hand, minute hand and second hand in case of the clock, है ना. So for hour hand, यानी कि जो हमें घंटा बताती है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 बज गए, 4 बज गए, वो वाली हैंड की बात कर रही हूँ मैं, वो वाली सुई की बात कर रही हूँ. सो वो कितने टाइम के बाद अपना कंप्लीट सर्कल कर लेती है क्लॉक में, 12 घंटे के बाद, है ना. 12 घंटे के बाद वो अपना कंप्लीट सर्कल कर लेती है. अगर वो 12 से स्टार्ट हुई है तो 12 घंटे के बाद फिर से 12 पे आ जाएगी आवर हैंड. तो 12 घंटे को अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो 12 इंटू 60 इंटू 60, और हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है. सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय टी. अभी हम निकाल के चुके हैं दोनों में रिलेशन. 2 पाई डिवाइड बाय टी, टी कितना है, 12 इंटू 60 इंटू 60. तो ये कितना आ जाएगा, 2 के साथ 6 कट जाएगा, और पाई डिवाइड बाय 60 इंटू 60 इंटू 6, दैट इज पाई डिवाइड बाय 216 रेडियन पर सेकेंड. नेक्स्ट इज फॉर मिनट हैंड. मिनट हैंड कितने टाइम के बाद अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, 1 घंटे के बाद. मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे के बाद, यानी कि जो लंबी वाली सुई होती है क्लॉक में, है ना, वो 1 घंटे के बाद अपना पूरा सर्कल कवर कर लेती है. सो हियर टाइम पीरियड इज 1 आवर, और 1 आवर में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट्स. तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स. तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय टी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 60 इंटू 60, सो इट इज विल बी रेडियन पर सेकेंड. नेक्स्ट इज फॉर सेकेंड हैंड. सेकेंड हैंड जो है, मतलब जो हमें सेकेंड्स बताते हैं कि 4 सेकेंड हो गए, 5 सेकेंड हो गए, है ना, तो वो 1 मिनट में ही अपना सर्कल कवर कर लेता है. तो यहाँ पे टाइम और भी रिड्यूस होगा, दैट टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड. सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय टी, दैट इज 2 पाई डिवाइड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड. तो इन तीनों केसेस में आप इस तरह से अपनी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं. Next is the centripetal force. It is a force which is required to move an object in a circular path with uniform speed. It act along the radius. Actually ये एक force है. अगर कोई body circular motion में move कर रही है तो उसके ऊपर एक force लगती है which is acted along the radius, जो कि inward लगती है, along the radius लगती है. That is nothing, it is but the centripetal force. और centrifugal force क्या है? It is that force that arises when a body is moving actually along a circular path by virtue of tendency of a body to regain its natural straight line path. Actually ये एक fictitious और pseudo force है जो कि opposite लगती है centripetal force के, ताकि वो जो object है वो बैलेंस में रहे, वो अपने ही लीनियर पाथ पे रहे, या फिर जो पाथ वो कवर कर रहा है उसी पाथ पे रहे.
सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्टिशियस और pseudo force, क्योंकि ये हम मान के चलते ये होती नहीं है, बट न्यूटन्स लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव टू अज्यूम दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दिस इज एक्ट अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। अलोंग द रेडियस मतलब इसी को ही अगर मैं प्रोड्यूस कर दूं आगे, बट इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और यू कैन सी इट इज अवे फ्रॉम सेंटर। centrifugal force is away from center and centripetal force is towards the center. Okay, and it arises on a accelerated frame. It is also termed as a pseudo force, and this is a path of inertia, क्योंकि अगर कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो हम उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट, और इसी को ही हम इनर्शिया का पाथ भी बोलते हैं, कि अगर सपोज यहाँ से रस्सी टूट जाए तो वो इसी टेंजेंट के अलोंग मूव करेगी। ओके, एंड जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, दीज बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हिच इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। m is a mass, v is a velocity and r is a radius, this one. And next is, here are some examples of circular motion. Vehicles on a level circular road. सबसे पहले हम करेंगे बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। अब अगर साइक्लिस्ट किसी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो आपने देखा होगा जैसे कि रेसिंग होती है किसी ओवल शेप या सर्कुलर पाथ पे, तो साइक्लिस्ट को थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है ताकि वो इसी पाथ में रहे, अदरवाइज इट विल कम एज आउट ऑफ द स्टेप। सो व्हाई दिस इज गोइंग टू बी बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, वही चीज है, उसका ही प्रूफ करने जा रहे हैं हम। लेट m बी द मास ऑफ साइकिल एंड साइक्लिस्ट, थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग विद वर्टिकल, जितना उसने बेंड किया है ताकि वो अपने ही पाथ में रहे। v इज द वेलोसिटी ऑफ साइकिल व्हाइल टर्निंग, एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ये मैंने साइक्लिस्ट बनाया है, एंड वेट इज एक्टिंग अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, एंड जो रिएक्शन है वो हमेशा इसके हेड ऑन लगेगा, क्योंकि अब इसका जो ये टिल्ट हो गया ना, तो टिल्ट होने पे जो नॉर्मल बनेगा दैट वुड बी द रिएक्शन, एंड ऑब्वियसली दिस वन इज अ थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा r cos थीटा, यानी कि r cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, and the left is the r sin theta, and here is the center of circular track। ये circular track का center है जिस path में ये move कर रहा है। So when the cyclist take a circular turn, then he requires centripetal force। जब वो circular turn cover कर रहा है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, नॉट ओनली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड ग्राउंड टू प्रोवाइड हिम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे लगेगी, पर वो उसे सिर्फ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स देयर, और अनसर्टेन है। सो इट इज नॉट सेफ कि अगर हम सिर्फ फ्रिक्शन पे ही डिपेंड करेंगे कि फ्रिक्शन की वजह से हम उतनी ही स्पीड से टर्न लेते हुए अपनी स्पीड या बेंड साइक्लिस्ट को नहीं होना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है कि अगर वो सिर्फ फ्रिक्शन के ही भरोसे बेंड ना हो, ऐसे ही ट्रैक में मूव करता रहे अपनी फुल वेलोसिटी के साथ, तो वो गिर जाएगा। Okay, so as a force of friction is small, uncertain, so dependence on it is not the safe. Also force of friction called wear and tear, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। And to avoid this dependence on the force of friction, for obtaining the centripetal force, the cyclist has to bend a little inward from his vertical. By doing it so, the component of normal direction r sin theta provides him necessary centripetal force। तो इसीलिए गिरने से बचने के लिए उसको हल्का सा बेंड होना पड़ता है। अब अगर हल्का सा बेंड होगा तो जो r का कंपोनेंट है दैट इज r sin थीटा, जो कि इनवर्ड लग जाएगा। कहाँ तो सिर्फ फ्रैक्शन लगता, और कहाँ अब इनवर्ड की तरफ कोई कंपोनेंट लग रहा है जो उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, विच इज एक्टिंग इनवर्ड टू द along the radius। so r sin theta यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा उसे। तो फिगर से ही क्लियर है कि r sin theta को हम क्या लेंगे, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, और जो r cos theta है दैट इज बैलेंसिंग द कंपोनेंट mg। okay, so r cos theta component is balancing mg, let it be question number 1, and r sin theta which is acting inward, acting as a centripetal force having the magnitude same as the centripetal force, that is mv square by r, so let it be question number 2, and divide 1 by 2, we got cos theta by sin theta। okay, and वहां से हमारे पास आ जाएगा cos डिवाइड बाय sin क्या होता है,
एनीवन कॉट। पर हमें क्या चाहिए, tan थीटा। तो यहाँ पे 1/2 से मेरे पास कॉट ऑफ थीटा आ जाएगा, पर मैंने मतलब इसको शफल करने के बाद ही सीधा लिख दिया यहाँ पे कि साइन थीटा या तो 2/1 भी कर लो या फिर 1/2 करके उसका इन्वर्स कर लो। ओके, सो दिस वुड बी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा mv स्क्वायर बाय r डिवाइड बाय mg। तो साइन बाय कॉस tan ऑफ थीटा v स्क्वायर बाय rg, that is theta is equal to tan inverse v square by rg। आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ या तो आप यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 कर लो, मैंने सीधा सॉल्व कर दिया है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय rg, या तो आप यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं इक्वेशन, या फिर कर सकते हैं 1 डिवाइड बाय 2 tan cotting the inverse। So here it comes theta is equal to tan inverse v square by rg। तो जिस एंगल पे उसे बेंड होना होगा that would be the tan inverse of v square by rg, so that जो साइक्लिस्ट है वो अपने सर्कुलर पाथ पे इजीली मूव कर जाए बेंड होकर और उसका कोई भी नुकसान ना हो। Next is the motion of car on a circular level road when a vehicle goes around a curved road। अब साइक्लिस्ट तो बेंड हो सकता है, पर जो कार है it is a four wheeler and it is not easy to bend them। that is why यहाँ पे कुछ अलग concept लग रहा है। when a vehicle goes around a curved road it requires some centripetal force। while rounding the curves the wheels of vehicles have tendency to leave the curved path। जब राउंड लेते हुए कार ट्रेवल करेगी तो ये टेंडेंसी हो सकती है कि उसके जो आउटसाइड व्हील्स हैं वो कर्व पाथ को लीव कर दें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से और अपना स्ट्रेट पाथ फॉलो करने की कोशिश करें। तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसे अपोज करती है। वी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस दिस टेंडेंसी ऑफ द व्हील्स, दैट इज व्हाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स towards the center of the circular track inwards and provide necessary centripetal force। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के केस में हमें r sin थीटा प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, पर यहाँ पे इट इज फोर व्हीलर तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हियर इज द केस, यहाँ पे मैंने कार ली है दैट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये इसका फर्स्ट टायर सेकेंड टायर, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेट इट बी मास m1 एंड राइट हैंड साइड से लेट इट बी मास m2 और इसका रिएक्शन जो लग रहा है दैट वुड बी r1, इसका रिएक्शन जो लग रहा है दैट वुड बी r2। आप इसे r1 इसे भी r2 ले सकते हैं, इट डजंट डिपेंड, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंपल r लेना है कैपिटल R, दैट वुड बी द सम ऑफ r1 प्लस r2। तो रिएक्शन कोई भी लो इट डजंट मैटर। नेक्स्ट इज कैपिटल M, मास ऑफ m1 प्लस मास ऑफ m2। अब इनसाइड तो लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और आउटसाइड कौन सी लगेगी सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और यहाँ पे वेट m2g, यहाँ पे वेट m1g। सो अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F that would be providing necessary centripetal force that is mv square divided by r। अब यहाँ पे हम कैपिटल M लेंगे यानी कि होल कार का मास, आधी आधी उन्हें ले सकते ना। सो पर हमें पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू आर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो r यहाँ पे किसके बराबर है, r दैट वुड बी इक्वल टू mg टोटल m2g प्लस m1g दैट वुड बी इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट में g दैट इज कैपिटल M इंटू जी, यानी कि जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन है वो टोटल इसके वेट के बराबर होगा दैट इज कैपिटल M इंटू जी। तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर दी कैपिटल M इंटू जी। अब हमें सेफ टर्न लेना है, यानी कि हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट वुड बी लेस देन दैट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये इसको इनवर्ड की तरफ बाइंड कर सके और ये बाहर ना जाए अपने पार्ट से। कौन, कार, व्हीकल। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mv स्क्वायर बाय r, इट इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg, क्योंकि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल चुके हैं म्यू कैपिटल mg। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए व्हाइल टेकिंग द टर्न। सो v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू rg, v इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ म्यू rg, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, r बी द रेडियस एंड g बी द ग्रेविटी। सो v मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अब इससे कम है, यानी कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है म्यू आर जी, बिकॉज इट इज ऑल्सो इक्वल टू लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पर्सन की दैट वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी while taking a turn while taking a four wheeler
along a uniform circular path to be safe, so that centripetal force is less than equal to force of friction, that is V max is equal to either mu rg or less than equal to mu rg. Here is one numerical. A person is speeding up at 18 km per hour on a level circular road, taking a sharp turn of radius 3 meter without reducing the speed. Given coefficient of friction अब यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, रेडियस दिया हुआ है आपको. Will the person slip or not? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी सेफेस्ट स्पीड्स निकाल के देखेंगे कि अगर इसकी स्पीड जो है, अब पर्सन की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से. तो पर्सन की स्पीड तो आ गई 5 मीटर पर सेकंड. पर सर्कुलर रोड पे ट्रैवल करने के लिए सेफेस्ट स्पीड कितनी होनी चाहिए, दैट इज रूट ऑफ म्यू आर जी. म्यू कितना दिया 0.1 इंटू आर कितना दिया हुआ है 3 मीटर इंटू ग्रेविटी कितनी है 9.8. तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा रूट ऑफ 2.94, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.71. अब आप देख सकते हो कि स्पीड ऑफ पर्सन कितनी है 5 और हमें कितनी चाहिए 1.71, विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड. यानी कि जो पर्सन है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा ग्रेटर है, ज्यादा है देन द मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड. सो अ पर्सन विल स्लिप, वो नहीं बच पाएगा, वो गिर जाएगा. सो सैड. नेक्स्ट इज द बैंकिंग ऑफ रोड्स. अब अगर ऐसा है, अब हमें स्पीड का ध्यान कई बार नहीं रहता, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबली इंक्रीज हो जाएंगे. सो हेयर इज अ बैंकिंग ऑफ रोड्स. रोड्स को थोड़ा सा आउटसाइड से उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज की गई, उसकी विड्थ इंक्रीज की गई, ताकि बैंकिंग ऑफ रोड्स के होने के साथ जो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी है उसका ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, और देयर वुड बी द लेसन द रिड्यूसेस द केस ऑफ द एक्सीडेंट्स along the banking of the roads. So we know that maximum permissible velocity with which a vehicle can go around a level curved road without sliding depends upon the coefficient of friction, क्योंकि R को भी हम चेंज नहीं कर सकते, उसका कर्व उतना ही रहेगा, और G को भी हम नहीं चेंज कर सकते, पर हम फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं. पर बाय चांस रोड स्मूथ आ गई, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने के साथ पर्सन स्लाइड हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा. सो दिस वन इज अ सैड स्टोरी. तो इसको चेंज करने के लिए वी यूज अ सेफ मेथड. सेफ मेथड इज फिनोमिना ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज. रिस्पेक्ट ऐसा आएगा यहाँ पे. विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड्स. यानी कि इनर रोड्स की स्टीप जो है वो कम की जाए और आउटर रोड्स की स्टीप जो है वो हाई की जाए. जैसे कि हील्स होती हैं, है ना, हिल्स की जो एडी साइड है वो थोड़ी सी उसकी हाइट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इनर फिंगर साइड. सिमिलरली फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज की जो हाइट है वो इंक्रीज करके विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज, दिस इज नोन एज अ बैंकिंग ऑफ रोड्स. And the angle by which outer edge is raised with respect to inner edge, that is known as the angle of banking. This one, यानी कि सड़क को ही हम ऐसे टिल्ट कर दें, यहाँ से उसकी हाइट इंक्रीज कर दे, यहाँ से वैसे का वैसे ही रहने दें. ओके, तो इस केस में क्या होगा, कार है उसका रिएक्शन अब इस साइड हो जाएगा क्योंकि सरफेस चेंज हो गया, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन इस साइड बनेगा. दिस वन इज थीटा, दिस वन इज आल्सो थीटा, सो आर कॉस थीटा दैट वुड बी बैलेंसिंग द mg, that is the weight of the car, and it is inclined at angle theta having height h, and the breadth of the, or you can say the distance between the rails, distance between the two banks is L. And here is the second component, that is mg sine of theta. Okay, now L is the distance between rails, theta is angle of banking, R is the radius of circular track, and from figure it is clear that when system is in equilibrium, तो जो R cos theta है, see R cos theta would be equal to mg, R cos theta equal to mg. Let it be question number 1. And the necessary centripetal force inward कौन सी लिख रही है, mg sin theta. That means अब necessary centripetal force कौन provide करेगा, mg sin of theta. So mg sin of theta that would be equal to r mv square divided by r. अब जो mg है, यहाँ पे mg है,
उसको mg साइन ऑफ थीटा तो है ही, पर यहाँ पे मैंने r साइन ऑफ थीटा भी ली. Okay, so that would be r sine of theta mv square by r. Let it be question number 2, that is the centripetal force. So इन दोनों को डिवाइड करने के बाद डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, you get tan of theta, that is v square by rg. So theta is equals to tan inverse v square by rg. So it is clear that tan of theta is equals to perpendicular divided by base, that is height divided by L, height divided by L. ओके, h डिवाइड बाय l. तो यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय l, तो h यहाँ से क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी क्रॉस l. दैट वुड बी द सेफेस्ट मेथड कि हाइट को इंक्रीज कर दो तो हम सेफ हो जाएंगे, एक्सीडेंट से बच जाएंगे बाय डूइंग द बैंकिंग ऑफ द रोप्स. सो नाउ वी आर हैप्पी टू सी दैट. थैंक यू सो मच.